A very good morning, class. I hope you all are healthy and safe at your home during this pandemic situation in the world. And today we are going to complete this very interesting poem, very beautiful and imagery poem, Rain on the Roof by Court Skinny, and from your book Beehive, poem number 3. And in this class today, in this chapter, we will complete the explanation of this poem, poetic device, figure of speech which are used in this poem, stanzas, lines, some value points, rhyming scheme, difficult word or unfamiliar word, and all these things we will complete today in this class. So, Rain on the Roof. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? As we can see the title of this poem, Rain on the Roof. So this poem is about poet's feeling, poet's love for rain. In this poem, poet is discussing his love for rain and some memories which he memorizing connected with rain. Okay, in this poem I am just giving you short description, and here it is asking, when the sky is covered with dark clouds and it is start raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Have you ever listened, आपने patter of सुना है of rain, soft rain on the roof? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? What kind of thoughts comes in your mind when you heard the sound of rain? Melody of nature means sound of rain. Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. So here we will read the poem and just know what are the feelings of poet. Okay. Let's start the poem. When the humid shadow hover. In the very first line, humid means moisturize. Shadow, here shadow word is take for blackness and black what clouds. Okay, black clouds like जो काले बादल, काली घटाएं like क्योंकि बारिश होनी है. And hover. Hover means flying round. So when the humid shadows hover, जब humid means नमी से भरे हुए, shadows means black clouds, hover यानी fly करते हैं. Over all the starry spheres. Starry means full of stars. Sphere means sky. कहाँ पर fly करते हैं? Starry spheres, full of sky with full of stars. ऐसे sky में जहाँ पर बहुत सारे stars हैं. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. और that darkness, that shadows, okay, that darkness जो कि shadow है, darkness है, black है, so उससे क्या बोल दिया? Melancholy means very sad. ओके, सो वो जो सैड डार्कनेस है वो क्या करती है? अब सैड है तो रोएगी. जेंटली वीप्स, रोती है. वीप्स मीन्स क्राइंग, रोना. इन रेनी टीयर्स, रेन के रूप में वो डार्कनेस रोती है. बादल जो है रेनिंग के रूप में अपने आंसू बरसा देते हैं. व्हेन, ठीक है, ये जब ये हुआ. व्हेन बादल आए, घेर आए, बादल आसमान में दुखी होके उस डार्कनेस ने अपने आंसू बहा दिए. जब ऐसा हुआ, अब 4 लाइन्स. तब अब पोइट के क्या फीलिंग्स रही तब, अब वो क्या फील कर रहा है तब, यहाँ से देखेंगे. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड lie listening to the patter or the soft rain overhead. Here poet is very happy. What a bliss. What a bliss means extreme happiness. ठीक है. The poet find this situation as a bliss to press the pillow in a cottage room bed.
वो इतनी खुशी फील करता है अपने कॉटेज रूम में बैठे हुए, बेड पर लेटे हुए, पिलो को अच्छे से हाथ में लेके, खुश होकर एकदम, एंड लाइज लिसनिंग टू द पैटर, और क्या खुश होके सुन रहा है, प्लेजर, ही इज़ इन वेरी मच प्लेजर टू लाई लिसनिंग टू द पैटरिंग साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन। वो खुश होके वो सॉफ्ट रेन का पैटरिंग साउंड सुन रहा। पैटर मीन्स होता है जो रेन का साउंड होता है जो रूफ पर पड़ता है, और आपकी रूफ पर जो नॉर्मल हमारे जो रूफ होते हैं उस पर साउंड नहीं आता, जो टिन का शेड रूफ होता है उस पर ये साउंड सुनाई देता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और जो सॉफ्ट रेन का जो साउंड है उसके सर पे जो उसको सुनाई दे रहा है। सीइंग द रेन इज़ ऑलवेज प्लीजेंट, as we all know, rain is always pleasant. However, too much rain causes many problems sometimes. Okay, so in our first stanza, what we got know that जब ऐसा होता है तब ऐसा पोएट फील करता है। ओके, बादल आते हैं, घिर आते हैं, बरसते हैं, तो पोएट अपने रूम में, कॉटेज में, चैम्बर में बैठ के, पिलो को हाथ में लेके, व्हाट अ ब्लिस फॉर एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील करता है वो पैटर्न साउंड को सुनते हुए। Now next stanza, here are some unfamiliar word from first stanza. Okay, humid, you can write this. Okay, by pause the video or take a screenshot. Humid, hover, starry, fierce, melancholy, bliss, pattern, humid, shadow. These are the unfamiliar word from stanza number 1. And apart from these words which you find difficult for you, you also can put that word in your notebook. Now second stanza, come to the second stanza. Very important hai. Every tinkle on the shingle. Tinkle means singing, ringing sound. रिंगिंग साउंड ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स मीन्स होते हैं टाइल्स। जो हमारा रूफ़ है उसका, कॉटेज का जो रूफ़ है, इधर जो टाइल्स लगे होते हैं दैट इज़ शिंगल्स। इन्हीं टाइल्स पर जब वो रेनिंग गिरता है पानी, दो एवरी टिंकल, जो हर जो टिंकल होता है, हर जो साउंड होता है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, एक उसके हार्ट में पहुँच के इको क्रिएट करता है। इको मीन्स होता है एक साउंड, ठीक है, जो गूंजता है ना पहाड़ों पे, एक बार आवाज़ लगाओ तो 2 बार रिपीट होती है, लाइक दैट। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और दैट टाइम उसके साथ क्या होता है, ही एक्सपीरियंस, दैट पोएट एक्सपीरियंसेस मैनी ड्रीमी फैंसीज इन हिज हार्ट, वो कई सारे ड्रीम्स, कल्पनाएं अपने हार्ट में एकदम फील एक्सपीरियंस करने लगता है। बिजी बीइंग स्टार्ट, जो कि स्टार्ट हो जाते हैं उसके हार्ट में आने लग जाते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो ये 1,000 रिकलेक्शन मीन्स यार मेमोरीज, थाउजेंड्स मेमोरीज उसके माइंड में आ जाते हैं, ठीक है, और वो सब क्या करने लगते हैं वो मेमोरी, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ, वीव मीन्स होता है बुनाई करना। एयर थ्रेड्स, अब एयर थ्रेड्स मीन्स थ्रेड्स तो है नहीं, यूं ही सपने बुने जा रहे हैं ना, दैट, तो वूफ मीन्स होता है ये जो आपने देखा होगा क्लोथ्स की जो वीविंग होती है लाइक दिस, ओके, जो कॉटन क्लोथ्स होता है शॉर्ट पैटर्न में हम देखते हैं, दैट इज वूफ। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, तो सर, एंड अब फिर से हम समझेंगे इस टू लाइन्स का मीनिंग। एंड 1,000 रिकलेक्शन, कई सारे मेमोरीज आते हैं उसके माइंड में, एंड वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी कि कई सारे बुनाई उसके शुरू हो जाती है उन सपनों की, उन इमेजिनेशंस की, उन मेमोरीज की उसके माइंड में। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही वो सुनता है पैटर साउंड को, कहाँ पे, उसकी रेन, उसकी रूफ पर, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। ओके, सो हेयर आर सम अनफेमिलियर वर्ड्स ऑफ दिस स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2, टिंकल, shingles, echo, recollections and woof. Now third and last stanza of this poem. Now in memory comes my mother as she used in years agone. In this stanza, poet just memorizing his mother. This question can come that poet is memorizing
किसको मेमोराइजिंग कर रहा है पोइट? उसकी मदर को। इस तरह से क्वेश्चंस जब आएंगे तो ये भी आ सकता है। सो in that rainy season, in that raining time, the poet imagine about his mother when he listened to the patter of the rain on the roof, as he used in the year agone. जैसा कि उसकी माइंड में उसकी माँ की याद आ जाती है, जैसा कि वो एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, कई वर्ष पहले जैसा कि वो उसके साथ करती थी, ठीक है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, क्या उनको रिगार्ड करना, अपना लव देना, स्नेह देना, किनको? डार्लिंग ड्रीमर्स को, जो कि उनका बेटा है यहाँ पे। डार्लिंग ड्रीमर्स सपने देख रहा है अच्छे से। इर शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, इर मीन्स होता है बिफोर, कब? टिल द डॉन, डॉन मीन्स होता है द टाइम बिफोर सनराइज, और सूरज निकलने के पहले बिफोर शी लेफ्ट देम, वो छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसकी मदर उसकी मेमोरीज में आ रही है, तो आई बट रात के समय, और जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ डॉन शी लेफ्ट देम, उन डार्लिंग ड्रीमर्स को छोड़ के वो चली जाती है। अब आप सोचेंगे ड्रीमर्स हैं, प्लूरल है और हमारे तो पोइट एक ही है, तो यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी रेनिंग को फील करते हैं पोइट उन सब के लिए बोल रहा है। ओके। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ ये है एक्सक्लामेटरी साइन, आश्चर्य वाला साइन है ना। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं फील करता हूँ अपनी मदर को, वो मुझे ही देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग, बार बार वो रिपीट हो रहा है ना साउंड, कौन सा म्यूजिक रिपीट हो रहा है बार बार? द साउंड ऑफ रेन, दैट पैटर साउंड। ओके, सो हेयर इट इज़ द मीनिंग द रिपीटेड पार्ट ऑफ एनी सॉन्ग, एनी म्यूजिक। ओके, सो वो कह रहा है ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं फील करता हूँ कि वो मुझे ही देख रहे हैं। कब? एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं ये रिफ्रेन, लिस्ट मीन्स हेयर लिसन, सुन रहा हूँ, दैट साउंड आई लिसन, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल, कौन सा साउंड? वो साउंड विच इज़ प्लेड, जो कि प्ले हो रहा है अपॉन द शिंगल्स, उन टाइल्स पे वो साउंड, बारिश का साउंड क्या हो रहा है? प्ले हो रहा है उसके घर की टाइल्स पे, है ना। बाय द पैटर ऑफ द रेन, और दैट पैटर ऑफ द रेन, रेन का पैटर साउंड। So here students, this is very beautiful poem and very easy poem. You just get the meaning, some words like humid, hover, starry, tinkle, shingles, refrain. Okay, these are some difficult word, dawn, so you can get this meaning of this poem very easily. Here some meaning of from stanza number 3, dreamers, one who sees sweet dreams. Please just कीप इन माइंड दैट स्वीट ड्रीम्स, जो स्वीट ड्रीम्स देखते हैं वो ड्रीमर्स। एर मीन्स बिफोर डॉन, टाइम बिफोर सनराइज, लिस्ट लिसन, रिफ्रेन रिपीटेड। इफ़ यू राइट दिस पोएम इन सेम वे, वन स्टैंजा then its meaning, then another stanza and its meaning, it will be very good. Okay, I just give you an advice. Here now we will discuss what are the poetic devices used in this poem very beautifully. Alliteration, alliteration ये होता है, alliteration is defined as a poetic device in which the consonant sound are repeated in words that appear together. consonant sound जो है repeat हो रहा है शब्दों में, शब्दों के शुरुआत में वर्ड्स, दो वर्ड्स हैं और वो एक ही consonant से शुरू है। lie listening L से शुरू है। ओके, स्टेरिस फेंजा इन द सेम वे, स्टेरिस फेयर्स, ओके, एस से शुरू है ये, तो यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। ह्यूमिड होवर, ये फर्स्ट स्टैंजा में आपके ये लाइंस यूज़ की गई हैं। प्लीज़ कीप योर बुक विथ यू एंड जस्ट सी इन योर बुक। ओके, प्रेस पिलो, पी से शुरू हुआ है, टू वर्ड्स हैं, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज़ पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन में ये वर्ड है पर्सन, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स
ऑब्जेक्ट या थिंग्स या ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी, पर्सन की क्वालिटी दे दी जाती है, वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है, दैट इज़ मेलनकली डार्कनेस। अब डार्कनेस नॉन लिविंग है, ओके, एंड मेलनकली यानी उदास होना, तो उदास तो इंसान होता है, लिविंग थिंग्स होते हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स को उन्होंने उदास कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। एंड 1000 रिकलेक्शन वीव देयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कई सारे रिकलेक्शंस, कई सारी मेमोरीज वीव कर रही हैं। वीव तो क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है ये वीविंग करना। अब आप कहेंगे मशीनों से भी होती है, दैट इज़ अनदर थिंग, ओके। रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। दैन रिपीटेशन, जब कोई वर्ड रिपीट हो रहा है पोएम में, कहीं भी रिपीट हो रहा है, पूरी ऑल ओवर पोएम में, कहीं यहाँ हो चाहे वो नीचे आ रहा हो चाहे कहीं भी किसी भी स्टैंजा में, पर वो रिपीट हो रहा है, दैट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन इन पोएट्री इज मल्टीपल यूजेज ऑफ अ वर्ड, फ्रेजेस, साउंड और स्टैंजा। ठीक है, मल्टीपल यूज़ हो रहा है किसी वर्ड का, किसी फ्रेजेस का, किसी साउंड का या किसी स्टैंजा का ही। ठीक है, लिसनिंग टू द पैटर्न और लिसन टू द पैटर्न, ये लाइन नंबर 7 में मिलेगा आपको, लाइन नंबर 15 में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस। नाउ ट्रांसफर्ड एपिथेट, बहुत अच्छा है ये भी, इनके नाम पे मत जाओ, इतने डराने वाले नाम नहीं है। Transferred epithet is defined as a poetic device in which an adjective is added before the name of a person or object in order to bestow positive। किसी भी नाम के आगे कोई भी नाम है, ठीक है, कोई भी नाउन है, और नाउन में भी प्रॉपर नाउन है, इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके आगे उन्होंने एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है, कि उसको पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज़ देने के लिए। तो डार्कनेस, हमें नहीं पता डार्कनेस इज़ डार्कनेस, बट जब उसके आगे हमने मेलनकली लगा दिया, देन इट गोज़ टू नेगेटिविटी, उदास डार्कनेस। ड्रीमी, फैंसीज हैं, कल्पनाएं हैं, पर कैसी, ड्रीमी, सपनों में चलने वाली ड्रीम्स, दैट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट। और इस टाइप की पोएटिक डिवाइस, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही अपना बता दिया था कि सारी पोएटिक डिवाइस बच्चों एक बार पढ़ लीजिए, हमको सारे पोएम्स में ये मिलेंगी। इट्स ओके, हम पोएम में भी पढ़ रहे हैं, और कई बार हर पोएम में इसी तरह से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी क्लियर हो जाएंगे, यदि एक बार में नहीं हो रहे हैं तो समझिए। एंड यू हैव टू राइट दीज इन योर नोटबुक। हियर आर सम पॉइंट्स, सम अ जिस्ट ऑफ द पोएम, ओके। जिस्ट मतलब एक बार में हम पढ़ना चाहें पोएम किस बारे में, जल्दी से कुछ पॉइंट्स में क्लियर करें तो, द पोइट इज़ रेस्टिंग ऑन हिज बेड, सडनली ही हेयर्स द साउंड ऑफ क्लाउड्स एंड क्वाइटनेस ऑल अराउंड डिसअपियर्स। साउंड सुनता है रेनिंग का, सारी क्वाइटनेस डिसअपियर हो जाती है। द रेन स्टार्ट्स ऑल ऑफ अ सडन, द टिन रूफ ऑफ हिज कॉटेज क्रिएट्स द ब्यूटीफुल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। The sound of rain echoes in the heart of the poet and he remembers a good number of things। उसके रेन के साउंड से उसके हार्ट में इकोज उठने लगता है, साउंड उठने लगते हैं, बहुत सारी रिमेंबर्स, अच्छी चीज़ों को रिमेंबर करने लगता है। सम ऑफ हिज मेमोरीज आर स्वीट एंड सम आर सैड, द पोएट रिसीव द साउंड ऑफ रेन एज अ ब्लिस। ठीक है, वो उस साउंड को, उस रेन के साउंड को एक ब्लिस की तरह मानता है, एक हैप्पीनेस की तरह मानता है। ये क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, तो आप यहाँ से इजीली इनको लगा सकते हैं। ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड एंड स्वीट लव रिसीव्ड फ्रॉम हिज मदर, यहाँ तक कि वो अपने बचपन को भी, बचपन में उसकी मदर को किस तरह से स्वीट लव सेंड करती थी, वो सब मेमोराइज करता है। तो एंड आफ्टर दिस वन मोर पोएटिक डिवाइस, ओनोमोटोपोइया, ये होता है, सीधी सी बात है, साउंड ऑफ एनिमल्स हम सुनते हैं ना, साउंड ऑफ बर्ड्स, ये सब इसी में ही आते हैं। साउंड ऑब्जेक्टिव और नॉन लिविंग थिंग्स के जितने भी साउंड हैं सब ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच के में कंसिडर किए जाते हैं। लाइक पैटर, साउंड ऑफ रेन, टिंकल, ऑल्सो साउंड लाइक बज, साउंड ऑफ हनी बी, ओके, roar, sound of lion. These all kinds of sound comes in this figure of speech, onomatopoeia. Onomatopoeia is defined as a poetic device in which certain words are used to denote real life sound. ठीक है, साउंड्स जिसमें आते हैं that is onomatopoeia. And here I am just giving you little in a little way, in a brief way, the entry, lesson entry, and just giving you some idea how will you complete this work in your notebook. First, as you know, Rain on the Roof by Gorskini, American poet. Okay, here are 3 stanza in our book. In this poem, each stanza has 8 lines. Okay, every stanza, हर stanza में 8 lines हैं, और 8 lines के stanza को हम कहते हैं octave.
very important things. 8-line stanza is called octave. Total lines 24. ओके, राइमिंग स्कीम अभी मैंने नहीं बताई, अभी जस्ट बताती हूँ. देन यू हैव टू राइट पोएटिक डिवाइसेस अबाउट द पोएट इन अ वेरी शॉर्ट वे, जस्ट इन अ सिंपल शॉर्ट पैराग्राफ, एंड देन यू विल कंप्लीट द थिंकिंग अबाउट द पोएम. Okay, so let's see the rhyming scheme of the poem. Okay, I just give you the rhyming scheme of first stanza, and this rhyming scheme will fit on other two stanza also. So hover, we will give it A. होवर ए. अब इधर और भी कोई वर्ड है इस स्टेंजा में जो कि होवर को राइम कर रहा है? नहीं है, तो इसको ए दे देंगे. फिर हमारे पास आ जाएगा स्फेयर्स. स्फेयर को हम क्या दे देंगे? बी. ओके, स्फेयर जैसा और क्या है हमारे पास? टीयर्स. स्फेयर्स टीयर्स, तो बी, टीयर्स को भी बी मिल जाएगा. देन हम आ जाएंगे डार्कनेस पे. डार्कनेस को हम लोग सी दे देंगे. ओके, एंड डार्कनेस से राइमिंग वर्ड्स भी नहीं है तो इसको सी ही रहने देंगे. फिर आ जाते हैं हम लोग पिलो. तो पिलो का राइमिंग वर्ड है? नहीं है, इसको डी दे देंगे हम लोग. देन आ जाएगा हमारा बेड. बेड के भी बेड एंड ओवरहेड, ये दो हमारे हो गए, इनको हम लोग ई दे देंगे. एंड पैटर इज ऑल्सो सिंगल साउंड वर्ड, इसको हम लोग एफ बोल देंगे. ओके, इसी तरह से राइमिंग स्कीम क्लियर की जाती है. सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा? ए बी सी, देन बी डी ई एफ ई. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स स्टेंजा है और दिस इज़ द राइमिंग स्कीम. देखिए फिर से समझ लीजिए, होवर जो है, होवर को राइम करता हुआ कोई भी वर्ड नहीं है, दैट इज़ ओनली ए. बी को राइम कर रहे हैं दो वर्ड, स्फेयर्स एंड टीयर्स, तो बी एंड बी. देन सी डार्कनेस, डार्कनेस का भी कोई राइमिंग वर्ड नहीं है. पिलो इज़ ऑल्सो सिंगल. देन बेड एंड ओवरहेड, एंड लास्ट इज पैटर. इसी तरह से in the same way you have to write a rhyming scheme other two stanzas. Okay, and to catch the rhyming scheme from poem is very easy. It is not difficult. Or if you have any doubt, please ask me by any means in your WhatsApp group, otherwise in this comment section, anywhere you can ask me. Okay, or you call me also. So here students, we just complete a very good and very beautiful poem Rain on the Roof from your book Beehive, and you all are going to complete this exercise, I think, in your notebook, and I hope you enjoy the poem. Thank you so much and good luck.